cost parallel to x-axis. Variable cost, as and when you start increasing your production, it increases. So variable factor keeps on going up. Fixed cost plus variable cost creates total cost. Here distance between these two will always be same or less or more? Huh? Same. Will they intersect each other? Sir, never. ये तो रेलवे की पटरी है, बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी सेम डिस्टेंस पर. आया ना? Because it is nothing but the same curve plotted from fixed cost as वेरिएबल कॉस्ट कर्व को वापस से प्लॉट करा है पर फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे प्लॉट करा, बेस पे प्लॉट करा है, तो वो टोटल कॉस्ट बन गया है. आया ना? अच्छा, अब इसके अंदर एक और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट की जब बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सर, एज एंड व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज, बट एज एंड व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट विल प्योरली डिपेंड ऑन टू द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन विच यू आर इन. ये वाली लाइन याद है? रिपीट, प्रोडक्शन विल इंक्रीज up to that point, मतलब production will increase, the cost will increase. But the point is, the cost per unit will increase or decrease based on the stage of production which you are in. If I am into increasing returns, my overall cost will increase, but per unit cost will come down. now. And if I am in diminishing returns, my overall cost will still increase, but per unit cost will come down or start going up. Start going up. बराबर? In stage of negative returns, will I do production? Sir, you will not do production in stage of negative returns. आया ना? Okay. इतनी बातचीत अपनी हो गई थी. Okay. उसके बाद higher the bigger the plant, which cost will be higher? If you have a bigger automated plant, which cost will be higher, fixed or variable? Fixed. And if the plant is not too much automated, which cost will be higher? Okay. What are the different names of fixed cost? Overhead cost, uncontrollable cost, sunk cost. Hello? Overhead cost, uncontrollable cost, sunk cost, supplementary cost. 4 नाम है उसके. Hello? Okay. So, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा, whatever component which you have in the overall cost, so if the component is more, for example in a car लोहा सबसे ज्यादा लगता है, so if the cost of iron goes up, the overall cost of car will go up or come down? Go up. But if the component is used in a very small proportion, so will it is going to make a big impact to the cost or not going to impact it? Stable और constant output सस्ता पड़ेगा या महंगा? The cost of a stable and constant output will be lower or higher? Lower. If I produce in a bigger lot, my cost per unit will be more or less? Less. याद आ रहा है? ऐसा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट वाले पॉइंट्स. उसके बाद जब हम आगे आए थे तो हमने ये बात करी थी कि सर, अगर आप फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हो, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं टोटल कॉस्ट पे डिवाइड बाय आउटपुट कर दूं तो क्या निकलता है? एवरेज टोटल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पे डिवाइड बाय आउटपुट करूं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट करूं तो याद आया? एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू. टेल मी वन थिंग. मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, फिर से इसी स्लाइड से आपको समझाता हूं. टेल मी वन थिंग नाउ. फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट है. ठीक है? फिक्स कॉस्ट का न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा? कांस्टेंट रहेगा. और आउटपुट नीचे, तो मोर द आउटपुट मोर द फिक्स कॉस्ट या लेसर द फिक्स कॉस्ट या लेसर द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मैंने वापस बोलता हूं. मोर द आउटपुट मोर द फिक्स कॉस्ट, मोर द आउटपुट लेसर द फिक्स कॉस्ट या मोर द आउटपुट lesser the per unit fixed cost? Lesser the थर्ड वाला, lesser the per unit fixed cost. बराबर? Okay. The average fixed cost curve will be downward sloping. Will average be zero? AFC will be zero? Will it go to negative? What is the name of the shape which you give to AFC curve? Rectangular hyperbola. याद आ रहा है?
average fixed cost curve. It will never touch x-axis, it will never go zero, and the shape will be called as rectangular hyperbola. अब ध्यान देना स्क्रीन पे, when I increase the variable cost, when I increase the production, variable cost will increase. Hello, बढ़ेगी variable cost, divide by output. तो variable cost divide by output होगा तो क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगातार बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, या एक जैसा चलता है, या डिपेंड करता है. अगर मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हूं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? कम होगा. डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हूं तो बढ़ेगा. मतलब आप अगर मैं और यहाँ पर मैं इमेजिन करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे आएगा, फिर नीचे आके ऊपर जाएगा. यस और नो? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को जोड़ लूं, मतलब if I do something like this, ATC will be equals to AFC plus AVC. So average fixed cost, average variable cost को जब मैं जोड़ लूंगा तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट. हाँ या ना? और वो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या करेंगे सर? वो एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों का मिक्स है. एक AFC शुरू से लेकर आखिर तक नीचे ले जाता था, नीचे ले जाता है, नीचे ले जाएगा. AVC पहले नीचे ला रहा था, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. इन दोनों के मिक्स से बनती है एवरेज टोटल कॉस्ट. तो क्या होगा? आपका एवरेज टोटल कॉस्ट का पहले नीचे आएगा, स्टेबलाइज होगा और ऊपर जाएगा, एक प्रॉपर यू शेप बनेगा. हाँ या ना? आइए तो देखें जरा इसको. सर एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे जाता था, नीचे जाता है, नीचे जा रहा है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे आया और नीचे आके फिर ऊपर जाना चालू किया. अच्छा, एवरेज को नीचे लाने वाला कौन? मार्जिनल. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे लाने वाला कौन? मार्जिनल. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर ले जाने वाला कौन? हर एक्स्ट्रा यूनिट बनने में जब पैसे ज्यादा लगेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी. हेलो, आया ना? आया कि नहीं आया? अब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को बीच में से कट करते हुए जाएगा यहां से. हाँ या ना? ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है सर? दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट. तो इसी को मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट बोलते हैं क्या? मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू MC इक्वल्स टू AC. वो डिपेंड करता है MRMC पर और जो मार्केट्स में हमको समझ में आता है. हाँ या ना? ओके. ये अपन बोलते हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स the average variable cost curve and average total cost curve at their respective minima. ऐसा कुछ याद आ रहा है? Okay, good enough. तो ये हो गया हमारी डिफरेंट कॉस्ट. ठीक है. फिर हमने लॉन्ग रन भी पढ़ा था. लॉन्ग रन में हमने दो अप्रोच पढ़ी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने बोला था एनवेलप शेप कर्व, बोर्ड शेप कर्व, प्लानिंग कर्व. याद आ रहा है? हेलो. लॉन्ग रन में जब हम जाते तो फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर रहते हैं, ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल. Sir, all factors become variable, and when all factors become variable, what happens? Sir, then all the costs are variable cost. आप शुरू में पहले दिन बहुत बड़ा प्लांट लगाते हो, छोटा सा आपको कमाता तो एक दूसरे लोग आते हैं, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती तो प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो पूरा यूटिलाइज नहीं होता, आपको नए प्लांट पे जाना पड़ता है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी. हेलो. उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट नीचे आएगी, पर वो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट में आप हर प्लांट फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हो या उसके फुल यूटिलाइजेशन से पहले ही नए प्लांट पे जाना पड़ता है? हाँ, उसके फुल यूटिलाइजेशन से पहले ही नए प्लांट पे जाना पड़ता है. हाँ या ना? ओके, ग्रेट. अब जब हम इसको करते हैं तो हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स बनाते हैं अलग अलग, लेकिन पहले वाले कर्व्स पे हमारे को मिलती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और हमको मिलता है रिड्यूसिंग कॉस्ट. और फिर जो बाद वाले कर्व्स थे आपके उसमें हमको मिल रही थी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो एक ऑप्टिमम पॉइंट हमको चौथे या पांचवे पर आया था.
कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? सर ये वाला पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट था सेंटर में। क्या ये ऑप्टिमम पॉइंट सब लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए अच्छा है या वन ऑफ द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए अच्छा है? हाँ एग्जैक्टली, ये एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में आप लोगों के कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा है वो क्वेश्चन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स यू द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला, या दूसरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स यू वेरियस लेवल्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन विच यू सिलेक्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में एक ही जगह दिख रही है, मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप सोच के देखो कि मैं इतना ही आउटपुट निकालने वाला हूं तो मेरे लिए बेस्ट प्लांट ये है, अगर मेरा आउटपुट लेवल ये है तो बेस्ट प्लांट, और अगर मेरा आउटपुट लेवल ये है तो बेस्ट प्लांट ये है, आउटपुट लेवल ये है तो बेस्ट प्लांट ये है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिव्स ओनली वन आइडियल पॉइंट ऑफ कॉस्ट, या इट गिव्स यू मल्टीपल पॉइंट्स? It depends upon you what level of production you would like to decide. Hello, याद आया? Okay. So long run average total cost curve के तीन नाम थे, कौन से? बोर्ड शेप कर्व, एनवेलप शेप कर्व एंड वेरी गुड लाइनिंग कर्व, बराबर? ओके। इसी में मॉडर्न अप्रोच भी आई थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है आपको मेरे को? सर मॉडर्न अप्रोच हमको और आपको ये समझाती है कि लॉन्ग रन में उन्होंने हमेशा देखा कि चीजों के दाम अगर एक बार कम हो जाते हैं तो कम होने के बाद जनरली उन्होंने उन दामों को बढ़ते हुए नहीं देखा। तो वो जो सेकंड वाला पोर्शन था, जो राइज था, वो सेकंड वाला पोर्शन आपको बहुत अनलाइकली मिला जगहों पर, हाँ या ना? हेलो। तो इसका मतलब क्या था कि ये कॉस्ट अपन ने ऐसा सीखा था कि सर ये ऐसा जाएगा, बट हुआ क्या, वो नीचे तो आया और नीचे आने के बाद ऊपर नहीं गया, हाँ या ना? हेलो, आयो कि नहीं आयो? डन। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब अगर बच्चे पूछते हैं हमको एग्जाम में कौन सा पूछे हो, तो वो एग्जाम में जब भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सिर्फ बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। जब तक वो लोग नाम न ले मॉडर्न अप्रोच, तब तक आप मान के चलिए वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच का एवरेज कॉस्ट कर्व पूछ रहे हैं, ठीक है? ओके। इसके बाद एक टॉपिक और था, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसा कुछ याद आ रहा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो सामने सामने दिखती है, आउटले कॉस्ट मतलब जिसमें जेब से पैसे जाते हैं, और अकाउंटिंग कॉस्ट जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है। तो बुक्स में तभी रिकॉर्ड होती है जब आप उसको पे करते हो, आज नहीं तो कल पे तो करना होगा। तो ऑल दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और आउटले कॉस्ट। फिर एक हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। आप सीए की एग्जाम दे रहे हो तो आपने बाकी करियर ऑप्शंस छोड़ दिए, तो वो करियर ऑप्शंस क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप सीए की क्लासेस पढ़ रहे हो तो जो फीस पे कर रहे हो, जो स्टेशनरी यूज कर रहे हो, ये सब क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, खर्चा हो रहा है ना जेब से। ओके। इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों को जोड़ के बनती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बराबर? ओके। तो अब अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे बताइए, सेल्स में से मैं अगर एक्सपेंसेस लेस करता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो ये कौन सा प्रॉफिट है? इकोनॉमिक प्रॉफिट है या अकाउंटिंग प्रॉफिट है? अकाउंटिंग प्रॉफिट को किस चीज से कंपेयर करूं तो मुझे पता चले कि मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट लॉस हुआ है? अकाउंटिंग प्रॉफिट को मैं किस चीज से कंपेयर करूं तो मुझे पता चले मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कौन सी कॉस्ट? मार्जिनल प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट से। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट से पास्ट ईयर कहां से आ गया? अकाउंट्स का रिवीजन कर लिया क्या? रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एनालिसिस, पास्ट ईयर तो आएगा ही नहीं मेरे बच्चे। तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? सर अगर मैंने किसी चीज को काम किया और मैंने उस चीज को काम करने के लिए कुछ पुराना छोड़ा है, तो जो मैं छोड़ रहा हूं वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इफ आई एम डूइंग सम बिजनेस, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज, फॉर दैट आई एम लीविंग अ जॉब एंड द जॉब वाज 7.5 लाख रुपीज। गुड चॉइस और बैड चॉइस? हाँ,
Good choice or bad choice? Why? Accounting profit minus implicit cost. If the answer is negative, it is economic loss. If the answer is positive, it is economic profit. देखो सामने दिख रहा है. आया? हेलो. ओके. इसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाले अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं अपने मोबाइल ऐप के टेस्ट में. आप करें. यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो ऑलरेडी आपके मैंने मोबाइल ऐप में 10 नहीं 20 नहीं 30 मॉक टेस्ट ले चुका हूँ. बट सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है, उसमें मेरे को ये भी दिख जाता है कि कितनों ने अटेम्प्ट नहीं करे. अगर आपके घर में आपके मोबाइल फोन पर मॉक टेस्ट बन के आ रहा है और आपको सिर्फ ओपन करके टिक 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 करना है, अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हो सीए? फिर स्कूल वाले प्री बोर्ड लेने के लिए इतनी हल्ला मचाते हैं, बेचारे इतनी मेहनत करते हो, और तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशन भी आता है इतने बजे टेस्ट है, रिमाइंडर भी देता है कि अब चालू हो रहा है, खत्म होने से पहले भी रिमाइंडर देता है कि अब 2 घंटे 3 घंटे बचे. तुम सब बिल्कुल अजगर जैसे हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना वो मजे लो अपन तो अपने. आई हैव गिवन यू अराउंड 30 फुल कोर्स मॉक टेस्ट टू द बैच ABC. मतलब आइडियली आई एम अगेन सेइंग, आइडियली ABC every student should pass the greatest of the marks because you started well in time, you had enough of time. Now if you don't pass CA exams, it is purely your fault. There is no single reason for batch ABC. B started post exams. They are also on the verge of completion of their syllabus. But ABC doesn't have a single word excuse. देखेंगे, मेरे पास तो सबके नाम बैच वाइज है, मैं तो देख ही लूंगा. समय याद आएगा मैं बीमार था, ऐसा था वैसा था, कोई कुछ नहीं सुनता है. कितने ही आपने मैच जितवाए हो, आप ट्रॉफी जितवा नहीं पाए, ये विराट कोहली की असफलता थी, असफलता है, असफलता रहेगी. आपने बायलैटरल सीरीज खूब जितवाई, आप बहुत अच्छे खेले हो, नो डाउट. सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की ताकत आप ही में, लेकिन यू कुडंट गेट अस द ट्रॉफी. इसका मतलब ऑन द बिग ओकेजन, ऑन द मेन डे, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार देखने को मिल गया अपने को. इसका मतलब ही डजंट हैव दैट टेम्परामेंट ऑन द लास्ट डे व्हेन ही इज अ कैप्टन. ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर. सो द सेम अप्लाइज टू यू. आपने कितना प्रैक्टिस करा है, क्या करा है, कुछ नहीं मालूम. इट हैज टू बी ऑन द डे. और उस डे तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क. मत इग्नोर करो उन चीजों को. सोशल मीडिया तुमको जिस तरीके से चूस रहा है ना, किसी काम का नहीं है वो. सो प्रैक्टिस हार्ड, मैं यही बोल सकता हूँ. चलिए, लेट्स वी कम टू मार्केट्स नाउ. So that will be the last discussion for the day. Markets देखने का टाइम बचा तो then we will go to business cycles. नहीं तो फिर वो business cycle और BC के कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. सर, मार्केट्स में नंबर 1, मार्केट्स को मार्केट्स कहते हैं. देयर शुड बी अ सेट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर शुड बी अ प्रोडक्ट और सर्विस, देयर शुड बी बार्गेन फॉर अ प्राइस. बार्गेन मतलब हर बार भावताव करना है या वैल्यू फॉर मनी. इज प्लेस कंपल्सरी फॉर अ मार्केट. At a time multiple products, but price, one product price shall be same for all at that particular point of time. Yes or no? Sir, when there is a demand and supply, where demand and supply come and meet together, when the buyer is willing and able to buy and seller is willing and able to sell the agreed quantity at agreed price, this is called equilibrium. This is also called price theory. This is also called market clearing price. This is also called microeconomic theory. ऐसे 2-3 नए नाम है इसके. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स की बात करते हैं. मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट से सामने खुला हुआ, मैं आपसे चाहता हूँ रैपिड फायर आप मुझे जवाब दो. मैं आपसे 5-10 क्वेश्चन पूछता हूँ. नंबर 1, नंबर ऑफ बायर्स सिंगल, नंबर ऑफ बायर्स फ्यू, नंबर ऑफ बायर्स मेनी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, बोथ.
ब्रांड लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोली में तो चॉइस ही नहीं है ना, लॉयल्टी क्या ला हो गया? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यू डेवलप अ ब्रांड लॉयल्टी विद लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एंड पीपल टेंड टू यूज दैट ब्रांड। मैं जिस साबुन से नहाता हूं मैं उसी से नहाऊंगा, प्रोवाइडेड मैं नहाता हूं, करेक्ट? अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सट्रीमली डिफरेंट, हाँ, मोनोपोली, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटेंशियल, मोनोपोलिस्टिक नहीं, ओलिगोपोली, नन टू सब्सटेंशियल, हाँ, ओलिगोपोली। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, हाँ, प्राइस मेकर, हाँ, प्राइस टेकर, नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व, मोनोपोली, प्राइस टेकन फ्रॉम इंडस्ट्री, perfect, P is equals to AR is equals to MR is equals to D, perfect competition, P is equals to AR is equals to MR but not equals to, sorry, P is equals to AR is equals to D but not equal to MR. Monopoly and monopolistic competition, both AR MR curves are negatively sloped and MR curve is bisecting the AR curve and y-axis into two equal halves. Huh? Monopoly. AR and MR curves are negatively sloped, but the MR curve is having a wider gap between AR curve and y-axis. Monopolistic competition. Hello. याद आया? ओके, ठीक है, पढ़ के देखो जरा सामने। डन। आयो नहीं आयो? एक क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम रिलेटेड वाला अपन कर लेते हैं साथ में, इससे आपकी मेरी थॉट प्रोसेस और अच्छी हो जाएगी। इक्विलिब्रियम वाला, ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में बेसिकली कहने को तो मार्केट का क्वेश्चन है, पर डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसके अंदर। तो वील डू वन क्वेश्चन टुगेदर। इन द फिगर 1 दैट इज ऑन द स्क्रीन, इट रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर मार्स बार्स। मार्स क्या है? चॉकलेट है। ये मार्स ग्रह इलॉन मस्क वाला नहीं है ना। In the initial equilibrium at the intersection of S1 D1, the new equilibrium there is an increase in cocoa prices. तो cocoa price मार्स के लिए क्या है? चॉकलेट कैसे बनता है? कोको से। तो कोको क्या हो गया? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई, कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल प्राइस अपने आप बढ़ जाती है क्या? नहीं। तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सप्लाई कम होगी तो S1 से S3
आया ना, वो डिमांड D1 ही रहेगी। S3 D1 का पॉइंट क्या है? 3, मतलब आंसर क्या है? हाँ 3, सो दैट इज पॉइंट A, मतलब ये वाला है ना आंसर। हेलो, वापस से फिगर 1, ये समझ में आया? रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो मेरा मार्जिन कम हुआ, मार्जिन कम हुआ तो मैंने मेरी सप्लाई कम करी। हेलो, सेकंड, मार्च बार फिर से है। द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट S1 D1, द न्यू इक्विलिब्रियम देयर इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोजेज अ टैक्स ऑन मार्च बार्स। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है और गवर्नमेंट ने मार्च बार पर टैक्स लगा दिया। मार्च बार पर टैक्स लगाने से सप्लाई का क्या होगा, बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से तो लोगों के हाथ में पैसा कम गया है या ज्यादा गया है? तो डिमांड सेम रहेगी या बढ़ेगी? तो डिमांड D1 से D2, सप्लाई S1 से S3, सो D2 S3, पॉइंट नंबर ये वाला। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ओके। उसके बाद 78 पे करते हैं वापस एक और। It again represents the market for Mars bars. The initial equilibrium is at S1 D1. The new equilibrium, if there is a health scare about effect the Mars bars may have. Mars bar खाने से, जैसे वो बाबा रामदेव बोलते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीने से तकलीफ हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सो D1 से D3 और सप्लाई वही रहेगी S1, तो D3 S1 is intersecting at 6. एक मिनट, सॉरी, हाँ यार, it is intersecting at 6. Hello. 79. मतलब next question. Again it is Mars bars. Assuming that Mars bar is an inferior good. अब inferior का कनेक्शन कैसे आएगा? प्राइस से या डिमांड इनकम से? हाँ बेटा, the new equilibrium if there is a recession and wages of worker producing them is falling. Inferior goods में जनरली higher the income lower the demand. यहाँ इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? इनकम कम हो रही है तो डिमांड तो क्या होगा? D2 S1, यस और नो? और रिसेशन है तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? तो D2 S3, वंस अगेन वी गो टू पॉइंट नंबर। ये इंटरप्रिटेशन जो मैं करके दे रहा हूं आपको, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये जो लाइन लिखी है उसका इंपैक्ट क्या क्या जा रहा है। जैसे इंफीरियर गुड है, इनकम फॉल्स, वेजेस ऑफ द वर्कर प्रोड्यूसिंग देम इज फॉलिंग, बट साथ साथ ये भी बोल रहा है ना रिसेशन है, तो रिसेशन है तो क्या होगा? मंदी होगी, मंदी होगी तो माल ज्यादा बिकेगा या कम? सप्लायर ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा? करेक्ट। 80. The figure 1 represents the Mars bar market. The initial equilibrium is at the intersection of S1 D1. Assuming that the price of sugar falls and at the same time there is a technological advancement in the production of Mars bars. सप्लाई बढ़ेगी, यस और नो? डिमांड बढ़ेगी क्या? सर डिमांड नहीं बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, यस और नो? अगर किसी के पास पुराने मॉडल टेस्ट पेपर जहाँ कुछ रखे हों तो उसमें वो आंसर गलत दिया हुआ है मॉड्यूल का, आंसर शुड बी 0.8, और वहां पर मॉड्यूल में उसको 0.7 दिया हुआ है आंसर, वो 0.7 आ ही नहीं सकता। अगर कोई पुराने टेस्ट पेपर या सो कॉल्ड आप अपनी कोई स्कैनर वैनर प्रैक्टिस करो तो ध्यान रखना, ये आंसर इधर सही है उधर गलत है। क्लियर? ये मार्केट्स 1 के अपना इक्विलिब्रियम वाले जितने पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड हो गई अपनी बातचीत। अभी एक अगला और वो देख लेते हैं अपन। सर बिहेवियरल प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था बिहेवियरल प्रिंसिपल मार्केट्स का, वो क्या था? सर अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। हेलो, इसी पॉइंट को पकड़ के मैंने आपको डायग्राम में सिखाया था, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व शुड कट दी एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। एमआर एमसी क्या होता है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने पर लगने वाला खर्चा ज्यादा हो रहा है और पैसे मिल रहे कम है तो प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। कहां तक जा सकते हैं? एमआर इक्वल्स टू एमसी तक। तो ये दोनों प्रिंसिपल उसी को बोल रहे हैं। सेकंड वाला भी वही बात दूसरे तरीके से बोल रहा है, इट इज प्रॉफिटेबल टू एक्सपैंड आउटपुट अप टू अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट एंड इट कैन बी कंटिन्यूड अप टू अ पॉइंट वेयर बोथ आर। हेलो, हाँ या ना? क्लियर? यही पॉइंट्स हमको बार बार यूज होंगे। अब
मेन पॉइंट्स ऑफ MRMC टू बी केप्ट इन माइंड। ये बहुत ध्यान से देखना है, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका ध्यान चला गया, बोलू सर MRMC जब होता है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म तो है, वही पॉइंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं, लॉस मिनिमाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म भी बोलते हैं। ऐसे कैसे सर, बना के दिखाऊंगा कि याद आ गया? सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक बार देख लो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये P = AR = MR = D था, आया ना? ये MC जब निकला यूं, तो यहां से आगे जाऊंगा तो क्या होगा? पर यूनिट खर्चा लगेगा ज्यादा, पैसे मिलेंगे कम। तो यहां से आगे जाना है या नहीं जाना है? ये झंडा गाड़ने वाली जगह है। अब यहां पर अगर मेरा एवरेज कॉस्ट यहां से जा रहा है तो मेरे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर एवरेज कॉस्ट यहां से जा रहा है और अगर एवरेज कॉस्ट यहां से जा रहा है तो लॉस है। मतलब मैं इसी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सकता हूं और मैक्सिमम मिनिमम लॉस भी कर सकता हूं। मतलब MRMC से मुझे आगे जाना नहीं है। क्लियर? वहीं पर अभी आपको कॉस्ट एनालिसिस में मैं पढ़ा के आया, MC = AC लोएस्ट कॉस्ट पॉइंट है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट है, पर वो मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट पॉइंट नीचे लिखा है, देखो। इट इज द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट, करेक्ट। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट। हाँ, ये नाम में कंफ्यूज करते हैं ये लोग आपको। एफिशिएंट आउटपुट मतलब लागत कम होना, प्रॉफिटेबल आउटपुट मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना, आया ना? बट नॉट नेसेसरली मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट विच इज सीन बाय MR = MC। एक शटडाउन पॉइंट और आया होगा। एक शटडाउन कॉस्ट होती है और शटडाउन पॉइंट होता है। शटडाउन पॉइंट इज नॉट इक्वल टू शटडाउन कॉस्ट। नोट करके रख लेना ये। वो आपके यहाँ शटडाउन और अबेंडनमेंट कॉस्ट करके एक कॉन्सेप्ट है आपके नोट्स में, वहां लिख लेना। इट इज नॉट सिमिलर टू शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट लिख लो, ओपन कर लो नोट्स। ये मार्केट्स, ये कॉस्ट में मिलेगा, कॉस्ट में। कॉस्ट चैप्टर में जाओ एक मिनट, वहां शटडाउन अबेंडनमेंट कॉस्ट है बेटा। हुआ? क्या लिखना है वहां पे? शटडाउन कॉस्ट जहां लिखी है ना, वहां लिखो शटडाउन पॉइंट इज नॉट इक्वल टू शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन पॉइंट इज वेयर द वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन सेल प्राइस। तो वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन सेल प्राइस। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने ये कैसे पढ़ाया था आपको। आपको याद है मैंने कहा था मैंने आपका बिजनेस कॉपी कर लिया है, बिहेवियरल प्रिंसिपल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपकी ब्रेकफास्ट वैन कॉपी कर ली थी। फिर आप और हम लड़ते लड़ते नीचे तक आए थे। फिर मैंने कहा था ये वेरिएबल कॉस्ट तक तो मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, उससे नीचे मैं कर रहा था तो आपने बोला अब हम आप ही से सामान लेके बेचने लग जाएंगे। याद आ रहा है? So that is shutdown point, when your variable cost goes more than your sale price. When variable cost goes more than your sale price, you should not work, you should shut down. Hello? ठीक है? क्या हो गया? अब जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो मार्केट्स पढ़ते समय हमको बहुत मेहनत लगती है, हम एक एक कर्व समझते, सब चीजें देखते हैं। अब हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए, अब हम सारी बातों को इतनी सिंपल तरीके से समराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होना चाहिए हमको। परफेक्ट कंपटीशन की खास बात क्या थी सर? उसका प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू D था, आया ना?
आप प्राइस मेकर हो या प्राइस टेकर हो? हाँ सर, प्राइस टेकर। फर्म बड़ा, आप बड़े, मतलब आप बड़े हो या इंडस्ट्री बड़ी है? यू विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड स्मॉल। स्मॉल इसलिए नहीं कि साइज कम है कंपनी की, बट यू विल नॉट बी एबल टू इम्पैक्ट द प्राइस in the overall market. Marginal cost curve is similar to supply curve in case of perfect competition. Whether this statement is correct or incorrect? So my question is, marginal cost curve is similar to supply curve in case of perfect competition. Whether this statement is correct or incorrect? So this sentence is incorrect. Only the rising part of marginal cost curve is similar to supply curve. है ना? ओके, सो व्हेन यू डिसाइड, आउटपुट काय से डिसाइड होगा? कितना प्रोड्यूस करना है? एमआरएमसी। जहां एमआरएमसी पहुंच गए वहां खड़े होकर झंडा गाड़ दिया और फिर एआरएसी को कंपेयर करा, तो एआरएसी कंपैरिजन से क्या होगा? नो प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। इफ एआर इज मोर देन एसी, प्रॉफिट और लॉस या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ एआर इज इक्वल टू एसी and if AR is less than AC, loss. बराबर? अच्छा, this happens in case of perfect competition. बराबर? In case of perfect competition in long run, what I can make, you can make, what we both can make, others can make. तो जो मैं बनाता हूं वो सब बना सकते हैं, जो मैं बेचता हूं वो सब बेच सकते हैं। तो होगा क्या फिर? आपको कमाई उतनी मिलेगी जितनी दूसरों को मिलती है। पर होता क्या है कि जब ज्यादा सेलर्स आते हैं मार्केट में तो सेल प्राइस नीचे आता है, तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है। डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो अच्छे लेवल पर आउटपुट निकलता है। यस और नो? हाँ या ना? तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में लॉस होगा क्या? सर कोई भी आदमी लगातार इतने साल तक लॉस क्यों करेगा? देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉफिट, बट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट यू विल मेक इन लॉन्ग रन इफ यू आर इन परफेक्ट कंपटीशन? जी बेटा, normal profit. So your plants will be optimum utilized. There will be no excess capacity, but your profit earning will be normal. Yes or no? One more thing I wanted to ask in this. हाँ, practical life में perfect competition आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? Practical life में, real life में आपको perfect competition कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? आपको क्या लगता है ये पूरी तरह से काल्पनिक है? सर, स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, एज वेल एज ऑक्शन ऑफ ग्रेन्स इन द एग्रीकल्चर मार्केट। ये मैंने तीनों चीज मेरे नोट्स में लिखी है। परफेक्ट कंपटीशन जहां चालू हुआ है ना, उसमें नीचे लास्ट लाइन है नोट्स में, देखो आप। हाँ जी, पर देख लिया हूं आपने, नीचे मिला आपको? हेलो, नेक्स्ट वन सर, मोनोपोली। मोनोपोली में आप प्राइस टेकर हो या प्राइस मेकर? सर फर्म और इंडस्ट्री एक ही है।
तो यहाँ लिख सकता हूँ फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री में प्राइस मेकर और AR और MR का उस पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या नेगेटिवली स्लोप। हाँ सर नेगेटिवली स्लोप्ड, हाँ या ना? ओके, द गैप बिटवीन AR MR and x axis, oh sorry, y axis and MR curve will bisect into two equal parts, हाँ या ना? ओके, अब आप इधर भी MR MC का इंटरसेक्शन आएगा। परफेक्ट कंपटीशन में तो तुमने सिर्फ क्वांटिटी डिसाइड करी थी MR MC से, प्राइस तो तुम्हें मार्केट से आया था। यहाँ जब इक्विलिब्रियम निकालोगे फर्म का तो MR MC इंटरसेक्ट करेंगे मोनोपोली के केस में, तो प्राइस डिसाइड करोगे, क्वांटिटी डिसाइड करोगे या दोनों डिसाइड करोगे? सर दोनों डिसाइड करेंगे। वहां खड़े होकर फिर ARAC का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। एक मोनोपोलिस्ट होने के नाते जनरली आई विल प्रेफर टू हैव AR मोर देन AC, हेलो, रादर देन AR इक्वल टू AC। मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं क्या? सर हो तो सकते हैं, लेकिन फिर इतनी मेहनत करके मोनोपोली बनाई क्यों अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो? है ना? तो AR मोर देन AC, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मोनोपोलिस्ट को लॉस हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर महंगा हो जाए तो आपको लॉसेस आ सकते हैं। कई लोगों को लगता है मोनोपोली लॉस कैसे हो सकता है? हो सकता है। लॉन्ग रन की बात करें तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में बड़े बड़े प्लांट लगा के प्रोडक्शन बढ़ाता है या जनरली नहीं करता? Sir, because if you increase the overall production, sir, you have to reduce the prices. If you have to reduce the prices, your ARAC margin will get squeezed off. ज्यादा माल बना लिया तो बेचने के लिए भाव गिराने पड़ेंगे, भाव गिराओगे तो मार्जिन कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा तो मजा किधर आएगा? हेलो, आयो कि नहीं आयो? सर आयो। सो दैट विल बी कॉल्ड एज नो प्रॉब्लम। वो ऐसा तो होगा नहीं, तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को लॉस तो होएगा नहीं। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ना, नहीं तो उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट नए प्लांट्स लगाता है या एक्जिस्टिंग प्लांट से ही चलता है? वो एक्जिस्टिंग प्लांट से ही चलता है, क्योंकि जितना आगे बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम उसकी बढ़ेगी। आए या ना आयो कि नहीं आयो? तो देखो लिखा है उसके अंदर, प्लांट फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं होता, एक्सेस कैपेसिटी रहती है मोनोपोली के केस में, और आपको प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में मिलेंगे AR मोर देन AC। आए या ना? हेलो, थक गए क्या तुम लोग? नॉट फुल्ली यूटिलाइज मतलब एक्सेस आपने जब क्वेश्चंस करते होगे तो बार बार यही पूछते हैं, एक्सेस कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, ये आता है कि नहीं आता है क्वेश्चंस में? विच मार्केट डजंट हैव एक्सेस कैपेसिटी, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन किसका फीचर है? हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बराबर। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नंबर ऑफ सेलर कितने? सर मैनी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? सर स्लाइड, वेरी गुड। यहाँ पे भी फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री है क्या? सर फर्म इज नॉट इक्वल टू इंडस्ट्री। प्राइस इज इक्वल टू AR है, इज इक्वल टू D है, बट इज नॉट इक्वल टू MR, है या ना? ओके, तो यहाँ पर जब इधर उसका नाम होना चाहिए था सुपर नॉर्मल बस। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो दूसरे भी बनाते हैं, आप क्या करते हो? लोगों में ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करते हो। कैसे डेवलप करते हो? थ्रू गुड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? तो गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यू डू दैट, हाँ या ना? ओके, एंड देन तो वहां पे भी MR इक्वल टू MC से इंटरसेक्शन आएगा और MR इक्वल टू MC से इंटरसेक्शन आएगा, फिर उस पॉइंट पे खड़े होके दोनों का कंपैरिजन होगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी मैं क्या करूंगा? अगर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना था तो फिर मेहनत क्यों करी? ब्रांड लॉयल्टी है तो कुछ तो प्रीमियम चार्ज करो, तो जनरली विल मेक मोर प्रॉफिट AR मोर देन AC। शॉर्ट रन मतलब आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप गलत प्रोडक्ट्स बना दोगे तो। लॉन्ग रन में आपके साथ बहुत सारे प्लेयर्स और हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स आर मेनी। तो अगर मैंने नींबू वाला साबुन बनाया तो दूसरा भी बना सकता, तो हम दोनों मिलकर मार्केट में जब सेल्स करेंगे तो पूरा इंडिया हमसे ही साबुन खरीदे, नॉट कंपलसरी। और मैं अकेला दाम बढ़ाऊंगा तो मेरा कॉम्पिटिटर जीत जाएगा, तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे को दाम बढ़ाने नहीं देते। यस और नो?
Yes or no? So in long run, in case of monopolistic competition, you will have normal profits only. And because there are number of sellers available, so your plant will not be fully utilized. You will have an excess capacity. मैं क्लास में समझाते टाइम ये भी बोलता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के मिक्स से बनता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो आप उनके फीचर्स में भी देख लो तो थोड़े फीचर्स मोनोपोली के, थोड़े फीचर्स कंपटीशन के हैं. इधर देखो, इधर AR इक्वल टू AC था, तो इधर भी AR इक्वल टू AC मिला है और यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी मैच हो गई है. हेलो, हाँ या ना? ओके. इसके बाद हम आए थे ओलिगोपोली पे. तो ओलिगोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स 1 होते हैं या मेनी या फ्यू. आपका प्रोडक्ट दूसरों से सिमिलर भी होता है, दूसरों से डिफरेंट भी होता है. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन टू सब्सटैंशियल. वहां पे इंडिविजुअल फर्म्स के प्रॉफिट लॉस निकल पाते हैं, फ्यू प्लेयर्स होने के कारण इंडस्ट्री डिमांड कब आता है. और उसमें भी MRMC ढूंढ पाते हो क्या तुम? सर MRMC नहीं ढूंढ पाते तो हम क्या करते हैं? किंग डिमांड कर्व निकलवाते हैं. और जो एक बार प्राइस किसी चीज प्रोडक्ट का फिक्स होगा तो उसी के आसपास रहते हैं, तो प्राइस रिजिडिटी आ जाती है. यस और नो? तो किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस इज देयर एंड प्राइस रिजिडिटी इज देयर. यस और नो? ओके. इतना करा था. फिर टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली था एक हमारे लिए, वो भी एक अच्छा खासा डिस्कशन है. तो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में परफेक्ट ओलिगोपोली तब होती है जब आप होमोजीनियस प्रोडक्ट निकालते. यस और नो? Perfect oligopoly is usually represented by homogeneous product. Differentiated is imperfect, where you have some differentiation in terms of slide. जैसे वो talcum powder है ना, एक जना घमोरियां भगा रहा है, एक जना फूलों की खुशबू दे रहा है, एक जना वो लड़कियों को पास बुला रहा है. एक्स इफेक्ट वाला पाउडर रहता है ना, वो वाइट स्टोन. तो वही. देन ओपन ओलिगोपोली में एंट्री एग्जिट इज permitted. Closed oligopoly में entry is restricted. Entry is restricted in case of petrol pumps. Not much of the companies are given licenses. कोई भरोसा नहीं, कोई तीली वीली लगा तो धड़ाम करके फूट जाए सब, इसलिए बहुत स्पेसिफिक रहता है. फिर आता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली. कोल्यूसिव ओलिगोपोली जब मैंने समझाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉल्ड मालाफाइड इंटेंशन. कोल्यूसिव ओलिगोपोली में when people get together and try to charge a higher price from the customer, इंटेंशन लूटने का होता है. मैंने एक वर्ड सीखा था बोनाफाइड और मालाफाइड, अगर आपको याद हो तो. कोल्यूसिव के अंदर मालाफाइड इंटेंशन होता है. अभी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और कौन सी एक दो और है, ये जितने भी ई शॉपिंग नेटवर्क्स हैं, अभी मीशो, इन सब पर जांच चल रही है कि ये सब लोग मिलकर ऑनलाइन मार्केट पे जबरदस्ती के ज्यादा डिस्काउंट्स देके मार्केट खराब कर रहे हैं. अभी वो मीशो 5-5 रुपए में सामान बेच रहा है. इसने ट्राई करा क्या? अरे वाह, अरे वाह, नहीं करा. सारा अली खान जैसी अमीर एक्ट्रेस भी खरीदने आ रही 5-5 रुपए में सामान, तुम नहीं गए? सर उसी को ले लो. ट्राई करा क्या किसी ने मीशो? ट्राई भी नहीं किया. भारी रईस लोग हो यार. वो कुछ बोल रही है ऐसे ऐसे, मैं आवाज दिएंगे, बता ना. अरे बता ही दे यार. सब मैं नहीं बताती मेरी शॉपिंग ऐसा. तो कैसे बेच रहे होंगे यार 5-5 रुपए में कोई भी चीज? ये एडवर्टाइजमेंट को बेवकूफ बना रहे हैं. ये तो ने डाउनलोड करके चेक करने की कोशिश करी कि वाकई में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. मीशो पे भी तो है, मीशो, शॉप्सी, मीशो फ्लिपकार्ट का है. हाँ मतलब कोई इधर ट्राई करा. हाँ इधर आए 2-3. लोकेश ठाकुर बोलते करिए शॉपिंग. अरे वेरी गुड. क्वालिटी ठीक नहीं है, रास्ते का माल सस्ते में ही मिलेगा और क्या. तो रोड साइड चप्पलें पड़ी रहती होंगी, वो आती होंगी 5-5 रुपए वहां से. हाँ मिली क्या? तूने खाई क्या? चलो
क्वालिटी ठीक नहीं है। अच्छा, वो एक ने ईयरफोन मंगवाया तो 2 दिन में खराब हो गया। ये वो गांव में नहीं, हाट बाजार में जो सामान बिकता है वहां पे भी कई बार अच्छा रहता है, ये इतना बड़ा है। चलो, तो ये अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हम कंपटीशन एक्ट 2002 में पढ़ने वाले हैं, कल बीसीके में पढ़ेंगे उसको। कोल्यूसिव ओलिगोपोली बेसिकली क्या होता है, पीपल गेट टुगेदर ट्राई टू इंक्रीज प्राइसेस। अभी हमारे देश में कोल्यूसिव ओलिगोपोली स्टील वालों की और सीमेंट वालों की चल रही है। हमारे देश के रेलवे वो सॉरी हाईवे मिनिस्टर गडकरी साहब नाराज है, स्टील वालों को और सीमेंट वालों को बोले दाम कम करो नहीं तो मैं दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा, कंस्ट्रक्शन में दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा, सीधे बोलते हैं। तो इट इज कोल्यूसिव ओलिगोपोली। पढ़ के देखो उस पॉइंट को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और एग्जाम में उन्होंने एक आध दो बार टच किया, मैं इसे थोड़ा डीपर जा रहा हूं इसमें। हाँ जी, आयो नहीं आयो, आया कोल्यूसिव ओलिगोपोली। हेलो, उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फर्म एंड दे कॉम्पीट विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। सब एक दूसरे से जम के लड़ते हैं। टेलीकॉम कंपनीज अभी तो लड़ी रही है जम के। पार्शल और फुल ओलिगोपोली, वन पर्सन इज लीडर, अदर्स आर फॉलोवर्स, दैट इज फुल पार्शल ओलिगोपोली। देखिए, when industry is dominated by one large firm which is considered looked upon as leader, the dominating firm will be the price leader. Usually you find this in biscuit industry. Parle leads, others follow. Full oligopoly, the market is conspicuous by the absence of price leadership. सब अपना अपना गाना गा रहे हैं, कोई उसमें लीडर नहीं है। सिंडिकेट एंड ऑर्गेनाइज्ड, सिंडिकेट में बेचने का काउंटर कॉमन होता है। मेडिकल स्टोर्स, लिकर शॉप्स, वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ही होते हैं। देखो लिखा है, फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट, जनरली यू फाइंड लिकर शॉप्स। अब सवाल उठता है सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज में अंतर क्या है। ऑर्गेनाइज में प्राइस का डिस्कशन हो जाएगा, क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, पर बेचने का काउंटर कॉमन नहीं होगा। Firms organize themselves into central association for fixing price, output quotas, etc. But they don't decide the selling counter. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेकेंड लास्ट में और लास्ट में? सेलिंग कॉमन और यहां पर सेलिंग इंडिपेंडेंट। हेलो, आया नहीं आया? बराबर सर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके बाद आया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट, व्हेन यू चार्ज, ये कौन से में आता है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक काय में आता है? मोनोपोली में आता है। वेरी गुड। व्हेन यू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स एंड द रीजंस फॉर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इज ड्यू टू रीजंस अदर देन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा याद आ रहा है? Price discrimination can be done when all the four conditions are satisfied. Number one, there is monopoly power in some form, पहली बात. Second, there is a possibility of market division. The elasticity of demand is different in different types of markets, and the customer of one market will not come to the other market. Hello, आया ना? ये चार कंडीशंस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत की है, बराबर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे किया गया था? क्योंकि सर हम सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें नहीं मालूम हम कौन से मार्केट में बेचने वाले हैं, तो हमने एक एग्रीगेट एवरेज रेवेन्यू, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू करके दो कर्व्स मिलाए थे। फिर उससे हमने मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट किया था और हमें क्वांटिटी मिली थी कंबाइंड। फिर हमने ग्राफ को उस पे से खसका के इधर लाए थे, तो हमें इंडिविजुअल मार्केट्स का पता चला था कि कितना कितना करेंगे। इफ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल, मैंने कहा था डॉक्टर साहब सुबह सस्ते में पेशेंट देखते, शाम को महंगे में पेशेंट देखते। सुबह ज्यादा पेशेंट देखेंगे, प्राइस कम रहेगा, शाम को कम पेशेंट देखेंगे पर प्राइस ज्यादा रहेगा। याद आ रहा है? ओके। एंड देन
देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सीक्वेंस कंपलसरी है क्या सर? सीक्वेंस कंपलसरी नहीं है। अंडर द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यू ट्राई टू टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द पर्सन, सब पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस आप हटाना चाहते हो, पहला। अंडर द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही विल टेक अवे ओनली अ पार्ट, मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो आपको सस्ता मिलेगा और कम क्वांटिटी होगी तो वो महंगा देगा। सो होलसेल और रिटेल, होलसेल में खरीदते हो तो कम में मिलता है, रिटेल में खरीदते हो तो, क्योंकि होलसेल में आपने क्वांटिटी ज्यादा परचेस करी और रिटेल में कम करी। थर्ड वाला था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मल्टीप्लेक्स में इंटरमिशन के बीच में, इंटरवल के बीच में आपको पॉपकॉर्न मिले महंगे, कुल्लू मनाली में 200 रुपए की कॉपी मिली। हेलो, याद आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो थर्ड डिग्री इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो तीनों क्लियर? ओके। एक इस पे भी डिस्कशन होता है, एक छोटा सा पोर्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये फॉर्मूला ऐसा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इंटू E-1/E। सर ये हमारे नोट्स में कहा है, मार्केट्स 1 में बिहेवियरल प्रिंसिपल के ठीक नीचे। मिला क्या? बोलू, आगे बोलू? ये ओपन किया तुमने, ये है क्या समझा देता हूं। आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी पर। कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूला छोड़ो जरा। अगर मेरी प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिक है, मतलब मोर देन 1 है, तो मैं जरा सा दाम कम करूंगा तो मेरे ग्राहक थोड़े से बढ़ेंगे या बहुत ज्यादा? तो मैं, क्योंकि क्या होता है सुनना, अगर मैं आज जीन्स बेच रहा हूं, पेयर ऑफ जीन्स मेरी दुकान है, तो मेरे यहाँ से रोज 10 पेयर ऑफ जीन्स बिक जाते हैं और मैं 2000 की एक जीन्स बेचता हूँ, ठीक है। तो मेरी पर डे सेल 20,000। अगर मैं 2000 की जीन्स की प्राइस कर देता हूँ 1500 और मेरी इलास्टिसिटी 2 है, तो मैंने 25% प्राइस कम करा और इलास्टिसिटी 2 है, तो मेरी डिमांड 50% बढ़ जाएगी। हाँ या ना? कल तक 10 कस्टमर आ रहे थे, अब कितने आएंगे? 25% प्राइस बढ़ाया, इलास्टिसिटी 2 है, तो डिमांड 50% बढ़ जाएगी। तो कल तक 10 कस्टमर आ रहे थे, तो आज 20 आ जाएंगे, 15 आएंगे? 15 आएंगे ना? हेलो, अब 1500 रुपए की जीन्स इंटू 15 जीन्स बिकेगी, तो 22,500। कल तक मेरे को कितने मिल रहे थे? 20। आज कितने मिल रहे हैं? 22,500। तो मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितने का मिला? 2,500 रुपए का मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मेरी इलास्टिसिटी मेरे बच्चों इन इलास्टिक हो, मेरी 2000 की जीन्स थी, 10 जीन्स रोज बेचता था तो 20,000 मिलते थे। मैंने 2000 को 1500 किया, पर मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 थी, तो प्लस 0.5 मतलब 0.5 मतलब 25% प्राइस बढ़ाया, डिमांड 25 इंटू 0.5 करूंगा तो 12% बढ़ेगी, तो 10 की जगह 11-12 जीन्स बिकेगी। अब 12 इंटू 1500 करूंगा तो 18,000 रुपए मिल रहे हैं। कल तक बिना सेल लगाए 20,000 मिल रहे थे, आज कितने मिल रहे हैं? तो मेरा एडिशनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया? यही कॉन्सेप्ट को समझाने की कहानी इधर है, ध्यान से देखो आप जरा। कॉमन सेंस क्लियर है? अब फॉर्मूला देखो, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AR इंटू E-1/E। तो एवरेज रेवेन्यू कुछ और नहीं, प्राइस होता है। AR और प्राइस बराबर है ना बच्चों? हेलो, तो प्राइस इंटू E-1। अगर मेरी इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो क्या होगा? 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय 1.5।
तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर मेरी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती, 0.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.6, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव? यही तीन बातें लिखी हैं। इफ E इज मोर देन 1, MR इज पॉजिटिव, E इज लेस देन 1, MR इज, एंड E इज इक्वल टू 1, देन MR इज 0। हेलो, ये एक छोटा सा पॉइंट है, तो कई बार बोलते बच्चा अपन ने शायद क्लास में उसमें कवर नहीं किया था, तो वो ये है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं आपको जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो ना, इलास्टिसिटी इज दिस, MR इज दिस, कैलकुलेट प्राइस, तो अब आप सोचने लग जाते हो कहां से निकालो, तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। क्लियर? ओके। हाँ, आपने मैंने बेसिक मार्केट्स को 2 पार्ट्स में पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में तो हमने सारी कंडीशन देखी। अब आपने मेरे साथ पढ़ा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। हेलो, इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब परफेक्ट कंपटीशन की कोई भी एक आध शर्त डिस्टर्ब होती है तो आप किधर आ जाते हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। बोलो साहब, क्लियर? तो देखो लिखा है, इकोनॉमिक थ्योरी, इम्परफेक्ट कंपटीशन इज कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इन एनी मार्केट वेयर कंडीशन नेसेसरी फॉर परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट सेटिस्फाइड। इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर दैट डज नॉट मीट द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कुछ नाम, मोनोपोली आप जानते हो, ओलिगोपोली आप जानते हो, मोनोपोलिस्टिक जानते हो, ये 3 नए नाम हैं आपके मेरे सामने अभी। मोनोपसोनी, मोनोपसोनी मतलब जनरली मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपसोनी सिंगल बायर। सर ऐसा कब होता है? डिफेंस ऑफ इंडिया, रेलवे, ये सब सिंगल बायर है। तुम और मैं रेल का इंजन थोड़ी ना खरीदते, खरीद भी लोगे तो क्या करोगे, चलाओगे कहाँ? अब तुम बोलो मैं कल से बोफोर्स तोप खरीदने जाऊंगा, टैंक खरीदूंगा, तो पहले तो तुम्हारे पास CBI आएगी, आओ जरा बातें करें खोपचे में, या कभी कभी बुला लेंगे सामान बेच के, आओ हमारी हवेली पे। तो मोनोपसोनी में सिंगल बायर होता है। इसी प्रकार ओलिगोपसोनी भी होता है। ओलिगोपसोनी में फ्यू बायर्स होते हैं। फ्यू बायर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे होते हैं, जैसे चॉकलेट और बिस्किट बनाने वाली कंपनियां एल्यूमिनियम फॉइल खरीदती हैं। टिन कैन जो तुम ऐसा कर करके पीते हो ना हर घूंट में स्वैग, वो टिन कैन्स जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी और ऑयल कंपनी खरीदती हैं। वो तो टिन का कनस्तर बनाते 15 लीटर का डब्बा। आप और मैं खरीदते क्या टिन? अच्छा, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। करेक्ट? तो ओलिगोपसोनी व्हेन देयर आर फ्यू बायर्स। फिर एक आता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब जब बायर के पास या एक व्यक्ति के पास ज्यादा जानकारी हो बजाय दूसरे के। जैसे सेकेंड हैंड कार, सुनना ध्यान से, मैं अगर अपनी सेकेंड हैंड कार बेच रहा हूं तो बायर को ज्यादा पता है या सेलर को ज्यादा पता है? तो मैं एडवांटेज उठा सकता हूं। वो पूछेगा कहीं ठोकी है? नहीं। गाड़ी का इंजन कभी खुला है? नहीं। सच बोल रहे हो? विद्या रानी की कसम। तो झूठ है ना, बिकॉज हम परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ते हैं? बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। इंफॉर्मेशन असिमेट्री मतलब वन पर्सन इज नोइंग मोर देन दी अदर वन एंड ही और शी कैन हाइड द फैक्ट्स एंड गिव अ बैड डील टू द अदर पर्सन। हेलो, समझे? So that is called oligopsony, oh sorry, information asymmetry. एक और वर्ड सिखाया था मैंने, बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है? सिंगल बायर और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल बनाता है इंजन और खरीदता कौन है? इंडियन रेलवे। खत्म। हम और आप तो किसी काम के ही नहीं है, हम तो बैठेंगे उसमें, इंजन में बैठेंगे, डब्बे में बैठेंगे, इंजन तो आगे लेके जाएगा उसको। ठीक है? तो हम यहां तक आते आते मार्केट्स खत्म कर दिए। हेलो, अब बचा आपका बिजनेस साइकिल है। जिस प्रकार की तुम्हारी शक्लें हैं, तुम बिजनेस साइकिल समझने लायक हो नहीं। इतनी कैपेसिटी तो तुम्हें पेपर देने की भी नहीं है अभी तक। सो अपन आज पॉज लेंगे। आप लोग ये नोट करके रख लो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होगा व्हाट्सएप वाला। मैं इस पे सिर्फ व्हाट्सएप सुनूंगा, इस पे आप फोन करोगे मैं फोन नहीं उठाऊंगा, ये बता देता हूँ।
व्हाट्सएप भेजिए। अब व्हाट्सएप में गलती से ऐसा मत बना, सर प्लीज एक्सप्लेन मार्केट्स, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसका। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप भेज सकते हो, सो दैट आई शैल बी एबल टू हेल्प। ठीक है, मेल भेजने का तो जमाना ही चला गया आजकल। प्लीज इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज नहीं करता हूँ। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के मेरे को टैग कर दिया, प्लीज एक्सप्लेन। क्या क्या हो, मतलब एंटरटेनमेंट है, पढ़ाई है, क्या है, मतलब डिसाइड तो कर लो जीवन में। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो मेरे को, ठीक है। दूसरी बात, आप 1 मिनट में वो क्या टेलीग्राम, हाँ यहाँ सब सीखना पड़ा है तुम लोगों के लिए। वो टेलीग्राम भी है एक मेरा, टेलीग्राम का ग्रुप का नाम मुझे याद नहीं रहता है, बहुत सारा। इको एंड बीसीके फॉर सीए फाउंडेशन, ऐसा कुछ है ना, वो सब बनवाया तुम जैसे बच्चों ने मेरे से। इको एंड बीसीके सीए फाउंडेशन, हाँ, इको एंड बीसीके सीए फाउंडेशन। इसमें मैं आपको रोज एकाध प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देता रहता हूँ। ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला भी नाटा अकेडमी के यूट्यूब पे रहेगा, और मैं इसको एनेबल करके आपके ऐप में भी दे दूंगा। आपके ऐप में इसका पीडीएफ भी आ जाएगा। कौन सा ऐप? ऐप का नाम है इकोनॉमिक्स फॉर सीएसीएस, ठीक है। कल आप इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल लाइए, उसमें बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे, और साथ साथ बीसी के भी लेके आइए, तो बीसी के भी अपन कर लेंगे। तो अपने को बीसी के में क्या है, इतनी वैरायटी है कि हर चीज अपने आप में कॉन्सेप्ट है वहां पर। तो चैप्टर 6 की टर्मिनोलॉजी कल पूरी कवर नहीं हो रही है, मैं अभी से बता रहा हूँ। नहीं तो आप सोचोगे मैं 200 टर्मिनोलॉजी चैप्टर 6 की बैठ के समझाऊं, वो नहीं। बट हाँ, चैप्टर 1 के अंदर सीखने लायक चीजें हैं। 2, 4, 5, 1 to 4, 5 वील डिस्कस। चैप्टर 3 के अंदर की पॉइंट्स का एक समरी नोट बनाया, वो दे दूंगा मैं आपको। और 6 की टर्मिनोलॉजी में जो भी, जिसमें आपको डाउट्स हो, वो मुझसे पूछ लेना। मतलब आप घर पे आज ब्राउज कर लेना, कहीं डाउट हो कि सर ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं हुई। जैसे 1-2 मैं बता देता हूँ, वो आउट ऑफ द मार्केट सेटलमेंट, और एक वो बदला ट्रेडिंग, बास्केट ट्रेडिंग, ऐसे 2-3 टर्मिनोलॉजी जो थोड़े अजीब लगते हैं, बट मेजॉरिटी शुड बी क्लियर टू यू। कल लिख के ले आना, मतलब निकाल के ले आना, तो वो आखिरी में करूंगा मैं आपके साथ की जो इंडिविजुअल 1-to-1 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल भी आइएगा, अपने दोस्तों यारों को भी लाइएगा, और अच्छे से सो के आइएगा।